لیول بھی مست ہے اس کے 50 پوائنٹ، اور اس کے آپ کی جو بیسک تنخواہ ہے اس کے بھی آپ کے نمبر مست ہیں۔ یہ دو چیزیں مست ہیں، باقی آپ اپنے پوائنٹ پورے کر کے 300 میں سے اگر آپ کے 200 پوائنٹ ہیں تو آپ جا کر اپلائی کریں گے تو آپ کو فوراً وہ ویزا مل جائے گا۔ السلام علیکم، میں ہوں ساؤتھ کوریا سے عباس حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کوریا پاک انفو۔ پہلے دوستو، آج کی میری ویڈیو ساؤتھ کوریا میں جو E74 ویزے کے لیے آپ لوگ اپلائی کرتے ہیں اور جو 2023 کے آخری کوارٹر میں اس کا جو اپلائی کرنے کا شیڈول تبدیل کیا گیا ہے اس میں کون کون سے پیپر لگتے ہیں اور یہ پیپر آپ کو کہاں سے ملیں گے اس بارے میں ہے۔ پہلے دوستو، اس مرتبہ یعنی کہ 2023 کے آخری کوارٹر میں اپلائی کرنے کی جو تاریخ ہے وہ 25 سپتمبر سے شروع ہو چکی ہے اور اس کی لاسٹ ڈیٹ 20 دسمبر 2023 تک ہے۔ اس کے اوپر پہلے جب نیا شیڈول آیا تھا تو اس وقت میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جو کہ وہ 2 یا 3 دنوں کے بعد اس شیڈول کو انہوں نے ختم کر دیا تھا، اور جب یہ اب نیا اعلان ہوا ہے تو جو پہلے شیڈول تھا اس میں اور اس میں تھوڑا سا 2 یا 3 چینجنگ ایسی ہیں جو پہلے نہیں کی گئی تھی اور جو اب کی گئی ہیں، یعنی کہ جو میں نے ویڈیو بنائی تھی اس کے لحاظ سے، اور باقی جو ہے نا وہ تقریباً سیم ٹو سیم ہے، لیکن اس پر بھی میں ایک علیحدہ سے ویڈیو بناؤں گا کہ یہ جو شیڈول آیا ہوا ہے اس میں کون کون لوگ اپلائی کیسے اپلائی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ لیکن جو آج میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں یہ صرف اور صرف جو اس میں اپلائی کرنے کے اہل ہیں ان کے جو پیپرز وغیرہ ہیں وہ کہاں سے ملیں گے، کون کون سے پیپر ہوں گے اس بارے میں ہے۔ تو اس ویزے کے لیے اپلائی کرنے کے لیے جن آپ کو کاغذات کی ضرورت پڑتی ہے اور جو اس چیز کے لیے زیادہ اہم بھی ہیں وہ جو میں اب آپ کو اس کی تفصیل بتاؤں گا۔ سب سے پہلے جو آپ کو اس ویزے کے لیے اپلائی کرنے کے لیے جو سب سے مین اور اہم پیپر ہے وہ ہے شنچنگ تھونگب شنچنگ سو، جسے آپ لوگ جسے آپ لوگ انگلش میں اپلیکیشن فارم بھی کہتے ہیں۔ جب آپ اکثر امیگریشن میں جاتے ہیں تو یہی پیپر وہاں پر بھی پڑا ہوتا ہے جسے آپ فل اپ کر کے اپنے ویزے کے لیے اپلائی کرتے ہیں۔ اسی پیپر کو تھونگب شنچنگ سو بھی کہتے ہیں۔ یہ ہے جتنے بھی پیپر میں بتاؤں گا یہ سارے ہائی کوریا یعنی کہ امیگریشن کی ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ ہو جائیں گے، اور اگر آپ انہیں کہیں گے تو میں آپ یہ تقریباً سارے پیپر اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گا جس سے آپ ایزیلی ڈاؤن لوڈ کر کے انہیں فل اپ کر کے آپ اپنے ویزے کے لیے استعمال کر سکیں گے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ دوسرا آپ کا جو پاسپورٹ ہے وہ، اور اس کے بعد تیسرا جو آپ کا آئی ڈی کارڈ ہے، یہ 3 چیزیں، اور آپ کی آئی ڈی کارڈ کی فرنٹ اور بیک ایک ہی پیج کے اوپر آپ نے فوٹو کاپی کرنی ہے۔ کوشش کریں کہ یہ آپ نے کلر کاپی کر لینی ہے، اور ان کی بھی آپ کو صابن کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کہ صابن کاپی کو بولتے ہیں ہنگومال میں، اور جو سمبون ہوتا ہے وہ اس کی اوریجنل کے جو ہوتا ہے کاغذات اس کو بولا جاتا ہے۔ تو آپ کو اس کی جو کاپی ہوگی وہیں آپ کو سکین کر کے جب آپ آن لائن اپلائی کریں گے تو اسی کے ساتھ آپ کو یہ اٹیچ کرنی ہوگی، اور یہ جو اپلیکیشن فارم ہے اسی اپلیکیشن فارم کے اوپر آپ کو ایک وائٹ بیک گراؤنڈ کے ساتھ اپنی ایک تصویر بھی اس کے اوپر لگا کے سکین کر کے ساتھ ہی، یعنی کہ اس اپلیکیشن فارم کے اوپر ہی لگی ہونی چاہیے، اور آپ کو اس کی جو فیس ہے وہ بھی 1,14,000 وان آپ کو آن لائن ہی یہاں پر دینی ہوگی۔ اور یہ آپ آن لائن بھی اپلائی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ خود وہاں پر جاتے ہیں تو وہاں پر جا کر بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں، یعنی کہ دونوں صورتوں میں ہو سکتا ہے، آن لائن بھی، اور اگر وہاں پر جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے اس کے آخری ہندسے کے لحاظ سے آپ وہاں پر جائیں گے، جو کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا ہوا ہے۔ تو آپ کی جو ڈیٹ آتی ہے ڈیٹ آف برتھ کے لحاظ سے تو آپ اس دن جائیں گے تو آپ کا بغیر ریزرویشن کے بھی وہاں پر آپ کے کاغذات جمع ہو جائیں گے۔ یہ تھا پہلا پیپر، اور دوسرا نمبر پر ہے آپ کا جو چھپ سوچے شن ساپیو، یعنی کہ یہ وہ پیپر ہے کہ جس کے اوپر آپ اپنے پوائنٹ وغیرہ لکھیں گے کہ آپ کے ایج کے پوائنٹ کتنے بنتے ہیں، آپ کی ایجوکیشن کے پوائنٹ کتنے بنتے ہیں، آپ کی کورین لینگویج کے پوائنٹ کتنے ہیں، اور آپ نے جو ٹیکس وغیرہ دیا ہوا ہے اس کے پوائنٹ کتنے، وہ ساری ڈیٹیل ہے۔ وہ پیپر بھی اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈال دیتا ہوں، اسے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ پیپر فل سو ہیں، یعنی کہ یہ مست ہیں،
ان के बगैर अगर आप अप्लाई करेंगे तो वो आपके कागज़ या तो रिजेक्ट हो जाएंगे या फिर वो आपको कहेंगे कि ये आप अपने पेपर लाजमी तौर पर आप लोग ये दें। और उसके बाद जो है ना तीसरे नंबर पर आप जो है शिनसंग जो आपको कीसल सो आपको जो दिखाई दे रहा है, इसमें जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसकी आपने डिस्क्रिप्शन बतानी है, यानी कि जिससे आप कंपनी में काम कर रहे हैं वो छेजिक जुंगमंगसू भी आप लगा दें। और इसके अलावा जो आपको कोरिया में टाइम हो गया है जो उसकी छागियों का है जो कि आपको दब्बों से लेनी पड़ती है तो वो भी आप लगाएंगे तो उसमें आपके पूरे कोरिया में रहने वाली जो डिटेल है वो उसमें शो हो जाएगी। तो आपको ये पेपर भी उसके साथ लाजमी तौर पर लगाना होगा। और नंबर 4 पर आपको खेयक्सो यानी कि फ्यूजन क्लो खेयक्सो यानी कि लेबर जो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कंपनी के साथ आप करेंगे वो भी आपको लगाना होगा। और इसमें आप लोगों को ध्यान करना है कि आपका ये कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का होना चाहिए और 2 साल का भी उस दिन से जिस दिन से आप ये अप्लाई कर रहे हैं। 2 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट बनवाएंगे और इसके अंदर जो आपकी सैलरी है वो जो वनबोंग होती है यानी कि सालाना सैलरी इकट्ठी होती है तो वो आपने 2,60,00,000 वान कम अज़ कम लिखवानी है, इससे कम नहीं लिखवानी। अगर आपने कम लिखवाई तो फिर दोबारा ये आपको पेपर वहाँ पर बनवा कर देना पड़ेगा। और इसमें जो आप अपना नलचा लिखेंगे, खिगान लिखेंगे, टाइम लिखेंगे, जिस दिन अप्लाई कर रहे हैं उस डेट और महीने से लेकर अगले 2 सालों का उसमें डेट और महीना आपने साल और उसमें वो टोटल डालेंगे तो फिर आपका ये जो है ना ये 2,60,00,000 वाला बस वो सही हो जाएगा। जबकि इससे पहले जो लोग अप्लाई करते थे तो वो अपना E9 वाला भी खेयक्सो जो कंपनी के साथ पहले किया होता था वो भी लगाते थे, अब उसकी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और नंबर 5 पर जो पेपर है वो बड़ा अहम पेपर है जिसे सोतो खुमेक छुंगम्योंग वान कहते हैं। इसमें आपने यानी कि जो आपके पिछले 2 साल गुजर चुके हैं उसमें जो आपने यहाँ कोरिया में काम करते हुए जो आपने टैक्स पे किया उसमें आपकी आमदन शो हो जाती है तो वो आपको पेपर जो है ना शीचोंग यानी कि सीटीआल से सोदुक से टैक्स ऑफिस से और इसके अलावा आपका जो करीब तरीन छुमी सेंटर है उससे और आपकी जो छुंगबू 24 जो इनकी वेबसाइट है तो ये वहाँ से भी आप अपना प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो ये आपको 2 साल का देना होगा 2018 से लेकर 2022 तक। जिसमें भी आपकी तनख्वाह का मैनेजमेंट आप करना चाहते हैं तो आप वो देंगे तो आपकी एक्सेप्ट की जाएगी। लेकिन अगर आप 2019 या 2018 या 2020 का पिछला देते हैं साहब का जब कोरोना का टाइम था तो उसमें आपको एक छुल्लेब इबकोम हागन साशल हागन सो ये भी वहाँ से पेपर मिलता है, ये भी आपको साथ लगाना पड़ेगा। इसमें आपका ये वाज़े तौर पर बताया जाएगा कि जितने टाइम का आप साबका लगा रहे हैं उसके दरमियान आप कोरिया में मौजूद थे या आप कोरिया में नहीं थे, यानी कि उसमें आपकी कोरिया में रहने की पूरी डिटेल आ जाएगी कि आपकी क्या रीज़न जितना टाइम आप कोरिया में रहे होंगे उसमें आ जाएगी। और जब आप मिसाल के तौर पर आप कोरोना की वजह से पाकिस्तान में रह गए थे, फंस गए थे, नहीं आ सके, साल 1.5 साल बाद आए हैं तो वो जब पेपर लगाएंगे तो उन्हें प्रूफ मिल जाएगा कि वाकई इस बंदे के साथ रीज़न थे। बाकी आप जो इस 2023 में जो लोग अप्लाई कर रहे हैं और जो अपनी पिछली सैलरी लगाना चाहते हैं 20 की या 21 की या अपनी 18 की या 19 की और वो ये भी प्रूफ देना चाहते हैं कि अब हम वापस भी आ चुके हैं और हमारी कंपनी का भी काम हमारा सही जा रहा है, तो इसी तरह का एक वनजोंग युंगसुजोंग जो पेपर होता है इसी के टाइप इसकी जो 2 ऑप्शन होती हैं उसके नीचे एक किन खोब हागन सो होता है वो भी निकलता है, वो आपका इसी साल का भी निकल आएगा। लेकिन वो आपका यही शो करेगा कि आपने इस साल में कितनी आमदनी कमाई है, लेकिन उसका वो आपके पॉइंट के लिहाज से आपको मदद नहीं करेगा। तो अगर ये भी आप साथ लगा देंगे तो आपका सैलरी के जो पॉइंट होंगे उसमें आपको वाज़ेह तौर पर उनके पास सबूत चला जाएगा कि ये बंदा इस वजह से इसके साथ मसला था और अब इसकी तनख्वाह इस लिहाज से बेहतर आ रही है, जो कि ये अब वो अपनी कवर भी कर लेगा। और उसके बाद 6ठे नंबर पर आपको जो आपके कोरियन लैंग्वेज की सर्टिफिकेट है वो आपको
उसमें देनी होगी। लेवल 2 पास किया हुआ है तो वही उसकी देनी होगी, और अगर आपने टॉपिक 1 का लेवल 2 किया हुआ है तो उसकी सर्टिफिकेट जो आगे से है वो देना पड़ेगा। और अगर आपने लेवल टेस्ट दिया है और आपके दूसरे लेवल यानी कि जो पास करते हैं 40 से ऊपर वाला जो होता है वो तीसरे में चला जाता है। इसी तरह अगर आप तीसरे में चले जाते हैं और आपका 41 से नंबर ऊपर आते हैं, 41 नंबर आते हैं, मतलब होगा कि आपका जो दूसरा लेवल है वो क्लियर है, तो वो उसका साजन प्योंग का हागन सो निकाल कर, या आपने दूसरा लेवल पास किया हुआ है या क्लियर कर लिया तो उसका भी हागन सो लगा कर साथ लगाएंगे तो आपको इसके जो है ना वो जो आपके ये लैंग्वेज के पॉइंट है वो मिलेंगे। इसका जो सर्टिफिकेट है वो प्रिंट आउट किस तरह होता है वो भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। इस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसे देखकर आप ये चेक कर सकते हैं कि ये आप अपने सर्टिफिकेट इस KIIP की वेबसाइट से किस तरह डाउनलोड करके अपना ये पेपर निकाल सकते हैं। और उसके बाद प्यारे दोस्तों जो इसके बाद जो 7वें नंबर पर आता है वो आता है शिनवन बोजोंगसो, जो गारंटी लेटर होता है। जैसे मैंने ऊपर बताया है, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके ऊपर 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए टाइम, और जो शिनवन बोजोंगसो है उसका भी आपका टाइम 2 साल लिखवाना है। और दोनों में महीना और डेट जिस दिन से अप्लाई कर रहे हैं और जिस दिन से लेकर जिस दिन तक करेंगे, तो ये दोनों चीज़ें आपने इसमें भी लाजमी तौर पर लिखवानी है। और ये जो शिनवन बोजोंगसो गारंटी लेटर है ये आपके कंपनी के मालिक की तरफ से आपका होगा, आप अपनी तरफ से नहीं, यानी कि वो आपका गारंटर होगा, आप नहीं होंगे। और जब वो आप ये पेपर साथ देंगे, जब आप स्कैन करेंगे तो इसके साथ आपके जो मालिक की अपनी पर्सनल ID कार्ड की कापी है वो भी आपको लाजमी तौर पर साथ देनी होगी, जो आपकी मालिक कंपनी का जिसके नाम साबचा है जो आपकी गारंटी दे रहा है वो लाजमी तौर पर देनी होगी। और उसके बाद प्यारे दोस्तों जो 8वें नंबर पर आता है वो कंपनी का जो साबचा तुम लोग बोनो होता है, जिसे रजिस्ट्रेशन नंबर कहते हैं, लाइसेंस नंबर कहते हैं, तो वो भी आपने लाजमी तौर पर उसकी कापी उसके साथ अटैच करनी यानी कि लगानी है। और उसके बाद 9वें नंबर पर जो कंपनी की तरफ से आपको मालिक की तरफ से जो आप कंपनी में काम कर रहे हैं, तो कंपनी कोरिया में जितनी भी कंपनीज हैं और जो भी कंपनीज हैं 6 जो दूसरी हैं, हर कंपनी कोरिया में अपना टैक्स पे करती है। तो उसके लिए उस कंपनी का या उस मालिक जिस मालिक के नाम वो कंपनी है उस मालिक के नाम का निकलेगा नप से छुंगम्योंग हागेनसो, एक ये पेपर और दूसरा चीबंग से ये पेपर, यानी कि ये 2 पेपर लाजमी तौर पर आपने अपने कंपनी के मालिक के निकाल कर साथ लाजमी लगाने हैं। ये भी फिर से हैं, यानी कि ये लाजमी पेपर हैं। और उसके बाद 10वें नंबर पर जो आता है वो आपका है खोयंगबोम गाइब चा म्योंगबो, ये भी कंपनी की तरफ से मिलेगा, यानी कि इसमें कंपनी की तरफ से ये आपके वो शो करेगी कि आपकी कंपनी में इस वक्त कितने वर्कर काम कर रहे हैं और कितने उसमें फॉरेनर हैं और कितने उसमें कोरियन हैं और कितने लोग जिनकी खोयंग बोम हुई है, यानी कि इस कंपनी में कितने वर्कर हैं कोरियन हैं जिसके ऊपर बंदे वो जो वीज़ा लेते हैं। यानी कि जैसे आप पूरी सनद में अप्लाई कर रहे हैं तो आपका 2 के ऊपर 1 फॉरेनर ले सकता है, और अगर आप 6 में कर रहे हैं तो आप 3 कोरियन के ऊपर 1 बंदा ले सकता है। तो उसमें इन लोगों की डिटेल होती है। और उसके बाद जो सादे बूम होती है वो भी पेपर मस्ट होता है, क्योंकि उसमें जो कंपनी की 4 इंश्योरेंस होती हैं वो उसमें शो हो जाते हैं। तो जिस वजह से ये वहाँ पर शो हो जाता है कि ये कंपनी टैक्स के लिहाज से भी क्लियर है और कोरियन किसी को भी बिला वजह नहीं निकाला गया। तो ये जो पेपर होता है ये भी लाजमी तौर पर आपको उसमें देना होता है। और उसके बाद 11वें नंबर पर होता है जो कि कंपनी की तरफ से आपको लेना पड़ेगा, वो होगा खोयंग छोचोनसो, यानी कि खोयंग जो आप जो पूरी सनब जो लोग, थोड़ा मैं यहाँ पर एक बात वादे कर देना चाहता हूँ कि जो लोग इस इंतज़ार में है कि हम कमिटेड वर्कर हैं और छोचन सौ बेस के ऊपर वीज़ा लेंगे, वो छोचन सौ एक अलहदा चीज़ है, उसके ऊपर अलहदा से मैं वीडियो बनाऊंगा। उसकी भी डेट आएगी अप्लाई करने की कि आप कब अप्लाई करेंगे। उसकी भी 5-5 हज़ार सीटें हैं, पूरी सन्नत में कुछ हैं और छेजों में कुछ हैं, तो आप उसके भी अप्लाई करने की अलहदा डेट होगी। ये जो है ये इल्बन 600 है जिसे आप, यानी कि कंपनी का मालिक आपको रिकमेंड करेगा, ये पहले कानून नहीं होता था। तो ये जब आप अप्लाई करेंगे तो ये भी पेपर आप लोगों के सामने है, जिसे
E74 वीज़ा फॉर्म कहते हैं। ये बिल्कुल प्रो फॉर्म बना हुआ है, इसी को कंपनी से आपने फिल अप करवा कर तो ये आप उसी के साथ अटैच करेंगे। ये इसके भी आपको पॉइंट मिलेंगे। अगर ये एडिशनल में जो लोग सिर्फ 600 बेस के ऊपर अप्लाई करेंगे ये उनके लिए है, लेकिन जो कंपनी आपको बना के देगी इसके आपको पॉइंट नहीं मिलेंगे। लेकिन ये एक नेसेसरी पेपर है जो कि आपको अपनी कंपनी की तरफ से बनवा कर देना होगा। तो जो आपकी कंपनी का मालिक आपको बना कर देगा और उसके साथ आपके जो मालिक की आईडी कार्ड है वो भी आपको उसके साथ वो मालिक लगाएगा, और जो उसका प्रोफार्मा है वो भी आप लोगों के सामने है। ये इसी टाइप का है। ये जितने भी पेपर बता रहा हूँ मैं सारे एक ही PDF फाइल में इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। आप सारे इकट्ठे एक दफ़ा डाउनलोड कर लेंगे तो वहाँ से जो आपको चाहिए होगा तो वो उसी पेपर को आप अपना फार्म फिलअप करके तो वो आप जब खुद जाएंगे अप्लाई करने के लिए या आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आपका ये इस तरह हो जाएगा। और उसके बाद ये चीज़ें थी कंपलसरी जो फिल्स थी जो आपने फादर ने अप्लाई करने के लिए बनानी है। और उसके बाद जो 5 चीज़ें और हैं, 6 चीज़ें और हैं जो आप अगर आपके पास हैं तो वो दें, और अगर आपके पास नहीं है तो फिर उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि जो एडिशनल पॉइंट में आते हैं, जो एडिशनल 6 किस्म के पॉइंट हैं वो उनके लिहाज से है। तो उनमें जो सबसे पहले जो आप लोगों के लिए जो सबसे पहले जो आपका आता है कि अगर आपने कोरिया में रहकर कोई आपके पास छागियों का है, जैसे आप जिस तरह के आप छीके छा का लाइसेंस लेते हैं जिसे खीनोंगसा कहते हैं, उसकी सर्टिफिकेट है तो उसे लगाएंगे, उसके भी आपको पॉइंट मिलेंगे। और दूसरे नंबर पर अगर आपने कोरिया में रहकर कोई तालीम हासिल की है जो कि पाकिस्तानी तालीम है, उसके नंबर ख़त्म कर दिए गए हैं, वो लगाएंगे तो उसके भी आपको पॉइंट मिलेंगे। और उसके बाद आपने यहाँ कोरिया से ड्राइविंग लाइसेंस लिया हुआ है और उसका आपके पास उसकी कापी लगाएंगे तो उसके भी आपको पॉइंट मिलेंगे। और उसके बाद आपकी कंपनी जो पूरी सनद है उसका भी आप हागन से निकलवा कर साथ लगाएंगे, यानी कि टेक्निकल काम की कंपनी है तो वो साथ लगा कर लगाएंगे। तो फिर आपका उस क्योंकि बाज़ औक़ात जितने भी अभी इस वक्त लड़के हैं मोस्ट लड़कों ने वीज़ा लिया हुआ है और एक कंपनी में बाज़ औक़ात कुछ लड़के ये सोचते हैं कि हम नहीं ले सकते, तो जब वो आप पूरी सनद भागन से लगा देंगे तो उससे ये मेंशन हो जाएगा कि इस कंपनी में पहले इतने लोग पूरी सनद पर हैं और इतने लोगों ने इसे अमल लिया हुआ है तो ये बंदा लेने का अहल है। और जो बाकी 2 आखिरी पेपर हैं वो आपके रिलेटेड नहीं है। जो लोग फिशिंग में हैं या कंस्ट्रक्शन में हैं वो पेपर उन लोगों के लिए हैं। तो इस बारे में मज़ीद आपने कोई मालूमात लेनी है तो आप 1345 पर कॉल करके उनसे भी इस बारे में कन्फर्मेशन कर लेनी है। और मज़ीद इंशाल्लाह ताला मैं लगातार वीडियो बनाता जाऊंगा। और ये वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी है। कोरिया में रहने वाले तमाम दोस्तों को अब ये लकी चांस मिला है और ये समझ लें कि ऐसे आप लोगों को वीज़ा दे रहे हैं कि जिस तरह बिल्कुल जैसे आप चीज़ों को एक आम चीज़ मिलती है उस लिहाज से थोड़ी सी कोशिश करें। लेवल भी मस्ट है उसके 50 पॉइंट और उसके आपको आपकी जो बेसिक तनख्वाह है उसके भी आपके नंबर मस्ट हैं। ये 2 चीज़ें मस्ट हैं, बाकी आप अपने पॉइंट पूरे करके 300 में से अगर आपके 200 पॉइंट हैं तो आप जाकर अप्लाई करेंगे तो आपको फ़ौरन वो वीज़ा मिल जाएगा। एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।